everyone. I hope you all are doing well. In this video and in the upcoming videos, I would be discussing different social problems, their causes in different societies, especially in the context of Pakistani societies and US societies. And we are going to understand different social problems along with their causes. We are going to relate all the sociological perspectives that we had discussed in the previous videos, and we are going to apply and implement the perspectives on the problems so that we can understand the problems in a proper way, so that we can go towards the solutions of different social problems, or at least we can understand them in a well manner. So let's take a start. In this video, I'm just going to give you an introduction to the social problems in the 21st century. So first of all, as we are going to proceed with social problems and their understanding, so I need to know that why am I using the word social? Why? Because it is a subject. Social problems actually is a course, a subject that is an umbrella term used in sociology. What is sociology? As we all know, I repeat again, it is the systematic study of human society. आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी देखते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रहने के लिए, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करती है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपको रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं, आप इंटरेक्ट होते हैं लोगों से, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो सोशियोलॉजी में आप ये सारे ओवरऑल फिनोमेना, ओवरऑल सोशल लाइफ एंड ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं. देन अब मैं जहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रही हूँ सोसाइटी की, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, डेट मीन्स सोशियोलॉजी की. तो जिस चीज़ की सोशियोलॉजी स्टडी है, डेट मीन्स सोसाइटी, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी एक्चुअली. सोसाइटी मीन्स individuals sharing geographical area and culture. Society is a web of social relationships. It is a place where individuals, it is a geographical area where individuals are living, where individuals are having interpersonal relationships and they are sharing a common culture. So this is all about society. And what is culture? I have uploaded a detailed video about the culture. Here we are just going to revise the definition of culture. That means culture includes knowledge, values, customs, material objects passed from one generation to next. Culture means the language you speak, the symbols you revere, the material objects that you people are making, and then these material objects are influencing your lives in return. So everything, the ways, the expectations of behaviors, everything you people are doing and seeing around you is actually part of your culture in a specific society. So this was all about sociology, society and culture. Now I have understood that if I am using the term social problem, it means that I am talking about the problems related to society. So what is the difference between a problem एंड अ सोशल प्रॉब्लम? मुझे ये कैसे पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या सिर्फ प्रॉब्लम है या ये सोशल प्रॉब्लम है? मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँगी? तो सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेदर इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम और नॉट, मैं आपसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूँगी, और ऐसी कोई भी सिचुएशन या बिहेवियरल पैटर्न जहाँ पे आपको ये कंडीशंस नज़र आए, इट मीन्स दैट इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल प्रॉब्लम इज़ अ कंडीशन एंड अ बिहेवियरल पैटर्न. कोई एक ख़ास किस्म का बिहेवियर या ख़ास किस्म की कंडीशन होती है. दूसरी चीज़, सोशल प्रॉब्लम goes beyond individual level. It means it is going to harm, it is going to negatively affect a large number of people in a society. एक प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम में यही डिफरेंस है कि प्रॉब्लम का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम. आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लेवल, जो कि साइकोलॉजी का कंसर्न है. साइकोलॉजी में यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ, मेंटालिटी, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बिहेवियर्स. और यहाँ पे भी सोशियोलॉजी में यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स, बट यू आर गोइंग बियॉन्ड इंडिविजुअल लेवल एट सोसाइटल लेवल. तो सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन है दैट इज़ नेगेटिवली इफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. And third characteristic is that it causes public concerns and collective actions. It means that if individuals of a society are being affected by a particular condition that you are calling a social problem, then they must have realization that they are facing something negative, so they should be
taking a collective action so that they can resolve the problem that the people are facing in a society. सोशल प्रॉब्लम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को इफ़ेक्ट करता है और उसमें मौजूद मेंबर्स के अंदर इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि वो एक चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो कोई कलेक्टिव एक्शन लें ताकि वो उससे बाहर निकल सकें। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, और आप अपनी एग्जांपल ज़रूर रिलेट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप करेंट पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें। अभी आप देखें, इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज इट इज़ affecting a large number of people in our society, in different societies। और दूसरी चीज़, members do have realization। members के अंदर भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि वो स्टेप्स लें, और हम कैसे स्टेप्स ले रहे हैं? हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया है, हमने कारोबार की टाइमिंग को कम कर दिया है, हमने मार्केट्स की टाइमिंग को कम कर दिया है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? हम मास्क वेयर कर रहे हैं, हम सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं, वो कलेक्टिव एक्शंस हैं दैट द पीपल आर टेकिंग so that we can resolve this social problem that is prevailing in our society। तो ये था concept of social problem, that how can you differentiate between our problem and our social problem, और आप कैसे understand करेंगे कि एक particular condition जो आप face कर रहे हैं वो क्या social problem है या नहीं है। इसके बाद मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रही होंगी, मैं जिस भी सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही होंगी, मैं उसे बेसिकली पर्सपेक्टिव्स पे अप्लाई करते हुए डिस्कस कर रही होंगी। आपको 4 पर्सपेक्टिव्स इन डिटेल वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आई हैड अपलोडेड all the 4 perspectives of sociology, that means structural functionalism, conflict perspective, symbolic interactionism and sociological imagination। ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप सोसाइटी में किसी भी फिनोमेना को या सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनमें आप सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके बाद में इन पर्सपेक्टिव्स को उन पर अप्लाई कर रहे होंगे टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो एक जो अप्रोच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एन अप्रोच टू सोशल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वाई? बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द होल वीडियो ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सो यू कैन गो एंड विजिट ओवर देयर इन माई चैनल। अभी के लिए इतना कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वॉज गिवन, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय सी राइट मिल्स, और वो ये कहता है कि it goes actually beyond individual level at societal level। ये अपने फोकस को शिफ्ट करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। ये अप्रोच कहती है कि अगर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न को फॉलो किए हुए है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मौजूद है, कंडीशन को सफ़र कर रहा है, तो उसके पीछे उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जॉबलेस है, शायद पर्सनल प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर सोसाइटी में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आर जॉबलेस तो उसके पीछे फिर सोशल फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को डिस्कस करने का जो रीज़न था वो यही है, और इस पे मेन फोकस का रीज़न ये है कि आप जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाली वीडियोस में जब मैं डिस्कस करूँगी और आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो ये याद रखिएगा कि आप सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दे दूं यहाँ पे इसी पैंडेमिक की, अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, इसके पीछे सोशल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ नेचुरल इन्वायरमेंट था जिसकी वजह से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ। फिर दूसरी चीज़, जब ज़ाहिर है हम अपनी एयरलाइंस बंद नहीं कर सके क्योंकि मोबिलिटी हो रही है, लोग एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, सो माइग्रेशन वॉज द रीज़न बिहाइंड स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस। जितना माइग्रेशन होती रही, लोग ज़ाहिर है इसका क्योर मुश्किल होता गया और इसका स्प्रेड जो है उसे कम करना मुश्किल होता गया, स्प्रेड बढ़ता गया। तो ये सोशल फैक्टर्स थे, एक इंडिविजुअल फैक्टर से ज़्यादा ये सोशल फैक्टर्स थे, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले वक्त में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको सोशल प्रॉब्लम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है, और आपको ये समझ आ गया है कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को मेरे साथ मिलकर कैसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो आई विल बी अपलोडिंग डिफरेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।